Hello students, today I am discuss of the some important salt, number third salt, baking soda. Okay, because previous lecture are attains are all students completed are the sodium chloride and bleaching powder. Now next salts of the important salt of baking soda. Baking soda. Okay, student. Baking soda, general formula of the sodium hydrocarbonate. Baking soda. Introduction. Introduction. Okay. Now, chemically, baking soda is chemically baking soda is sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate. Hydrogen carbonate. Okay. Chemically, baking soda is sodium hydrogen carbonate with the formula of NaHCO3. NaHCO3. It is also called. It is also. It is also called sodium bicarbonate. Okay. सोडियम पूरा पे लिखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट ओके स्टूडेंट chemically baking soda is sodium hydrogen carbonate with the formula of NaHCO3. It is also called sodium bicarbonate. Okay, this is compound present in major constituents of the baking soda. ठीक है, ये बेकिंग सोडा में बहुत अधिक ये पाया जाता है या नहीं अच्छी। अब हम इसकी करेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ठीक है, बेकिंग सोडा आर आल्सो प्रिपेयर्ड इन सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट, यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब हम मिलाते हैं तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है। इन लेबोरेटरी प्रोसेस द सोडियम कैन प्रिपेयर्ड causing excess carbon dioxide. Okay, when the sodium carbonate excess of the carbon dioxide with water. Okay, students. सोडियम कार्बोनेट ठीक है, causing excess of the carbon dioxide gas with the water and form of the baking soda. Okay, one nitrogen, one sodium, one hydrogen and carbonate. With the one oxygen contained of the carbon dioxide is formed the CO3. Okay, students. One CO3 and two CO3. So two types of two moles of the two nitrogen and two hydrogen. Two nitrogen, two hydrogen, and one oxygen contained of the carbon dioxide is also called carbonate. One carbonate and another carbonate say twice NaHCO3. This is called the sodium bicarbonate. Okay, this is called sodium bicarbonate, NaHCO3. Okay, student, when the sodium carbonate excess of the carbon dioxide with the H2O. One oxygen are contained in the CO3 and two hydrogen contained in the two H and Na2. So it's called the twice NaOH. Okay,
चाहे तो आप अलग अलग भी करके कर सकते हैं, तो दोनों में आपको समझ में आ जाएगा। सोडियम 2 है तो ऑलरेडी ट्वाइस हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ये ट्वाइस से मल्टीप्लाई है, ये भी ट्वाइस हो गया। एक CO3 था, इसका ऑक्सीजन ये ले लिया, तो ये भी कार्बोनेट बना दिया, तो यानी HCO3 ऑलरेडी आपका बन गया। ठीक है, एकदम सिंपल इक्वेशन है ये, आपके इसमें लेबोरेटरी में फॉर्म की जाती है। बेकिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, बेकिंग सोडा ये नहीं है, बेकिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड ऑफ द सोडियम कार्बोनेट एक्सेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने का बेटा मेथड है, इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, शॉर्ट नोट से पूछ लेता है। साल्वे प्रोसेस साइंटिस्ट थे, उन्हीं की प्रोसेस के थ्रू ऑलरेडी कंप्लीट करना है आपका सॉल्वे प्रोसेस। Solvay scientist has denoted of the intermediate product of the sodium bicarbonate containing of the sodium chloride react with the ammonia। अमोनिया के साथ उन्होंने क्या किया था, इसको रिएक्ट करवाया था, और कार्बन डाई और प्रेजेंस का कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 फोर रिएक्टेंट उन्होंने ऑलरेडी कंक्लूड किया था, 4 रिएक्टेंट, और 4 रिएक्टेंट के बाद अमोनियम क्लोराइड आपकी रिड्यूस हो गई थी। अमोनियम क्लोराइड, वन हाइड्रोजन आर रिप्लेसमेंट्स ऑफ द, ये वन हाइड्रोजन आर ऐड ऑफ द NH4 okay, and one chlorine add 1H4Cl अमोनियम क्लोराइड, एंड बचा क्या आपके पास, यानी यहाँ से देखो Cl जा चुका है, इसमें एक H भी जा चुका है, अब एक ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा तो CO3, एक H बचा और एक Na बचा। Na आपका 1 बचा हुआ है, ठीक है, इसमें से एक H जा चुका है, एक H बचा, अब ये CO2 था, एक ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पर ये हो गया CO3। ठीक है, इस प्रोसेस को, इसको हम सॉल्वेबल प्रोसेस बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म्स इन द अबव रिएक्शन sparing soluble water in separated out of the precipitate filled out of dead। ओके, इन्होंने दो स्टेप्स में ये रिएक्शंस करवाए थे, दोनों स्टेप्स का जब हम उसको ऐड कर दिए थे, ये हमारा फार्मूला हो। जनरल में अगर 1 नंबर में आपको पूछता है कि सॉल्वेबल प्रोसेस, ठीक है, तो सॉलिड प्रोसेस के लिए ये दोनों कंटेंट्स आप सबसे पहले ले लेंगे। ठीक है, यानी अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। अमोनियम, देखिए अगर 1 नंबर में आता होता तो आपको डायरेक्ट लिख कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बट अगर ये इसको डिस्क्राइब करने के लिए बोलता है तो अमोनियम, तो आप बोलेंगे फर्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, सबसे पहले ये अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, देखिए इसको 2 स्टेप्स में कैसे कंप्लीट होगी, आप इसको देख लीजिए तो आ जाएगी, शुरू से मैं दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेप में अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इससे बनाया गया अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट, एक H जैसे इसको मिल गया, ये बन गया NH4। ओके, अब ये ऑक्सीजन इसको मिला, NH4 था यहाँ पर, और ये क्या बन गया NH4H CO3। ठीक है, अमोनियम NH4H CO3, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फर्दर उन्होंने क्या किया, फिर एक प्रोडक्ट कहा, स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में इसी प्रोडक्ट को लेने के बाद उसमें उन्होंने NaCl, ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड ड्रॉप्स या सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मिक्स करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर यानी HCO3 एंड अमोनिया, देखिए यहाँ से NH4 है, इसमें से Cl ले लिया, ये आपका निकल गया NH4Cl। ठीक है, अब बचा देखिए यहाँ पर NaHCO3, NaHCO3, यहाँ पर ये फॉर्म हो गया अपना NaHCO3। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों स्टेप्स को बेटा क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, नीचे चलता है,
ठीक है, नीचे ऐड कर देंगे। जब भी इस प्रकार के ऐड में आता है, जो कंपाउंड दोनों साइड होता है उसको काट देते हैं हम। देखिए ये भी इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, दोनों कट गया। अब हमारा बचा क्या, जो आपको पहले रिएक्शन लेनी थी, तो यहाँ पर बचा क्या, NH3, देखिए, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड NaCl। ठीक है, इसका रिएक्टेंट लिख लेंगे। अब ये दोनों प्रोडक्ट तो सेम वही फॉर्मूला से आगे आपका ये NH4Cl NaHCO3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 स्टेप्स में इन्होंने किया था। इसको बेटा ऐड कर देंगे, दोनों साइड जो ऊपर रहता है वो हमारा काट देते हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 4 रिएक्टेंट हुआ और 2 प्रोडक्ट है, इसी को हम नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, यही जो है स्टेप बाय स्टेप जो चल रही है, इसको हम बोलते हैं सॉल्वे। ठीक है, साइंटिस्ट ने बताया था सॉल्वे रिएक्शन कहलाएगा ये 2 स्टेप्स में, और सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड है। याद रखना आपको कि अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट बनाता है। बर्तन अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट में जब हम NaCl डालते हैं तो अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एक दो बार करेंगे तो आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। ये थी इसकी प्रिपरेशन। अब पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। Physical property number 1, it is white crystalline solid. It is, आपने देखा होगा बेकिंग सोडा को घर में आपका पाउडर के रूप में होता है व्हाइट कलर का। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। Number 2, it is stable in air. It is stable in air. ठीक है, ये स्टेबल होता है एयर में। soluble in water. Okay, soluble in water and solution is formed alkaline. Is alkaline. ठीक है, जनरली व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड वाटर जैसा। इट इज सॉल्युबल इन स्टेबल इन एयर, सॉल्युबल इन वाटर, एंड जो इसका सॉल्यूशन वाटर के साथ मिलने पर बनता है वो कैसा बनता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होती है, ये हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 1। केमिकल प्रॉपर्टी में जो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है उसी कंपाउंड के साथ हमको रिएक्शन कराना होता है। ठीक है, नंबर 1 में रिएक्शन विथ हीट। रिएक्शन विथ हीट। ठीक है, अगर इसी कंपाउंड को हम हीट कर देते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, जैसे रिएक्शन विथ हीट, इसका मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हीट या रिएक्शन विथ हीट। सोडियम कार्बोनेट को हम जब हीट करेंगे तो हमारा H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, वाटर वेपर। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट
are heated, then form sodium carbonate, carbon dioxide एंड वेपर्स। वेपर्स में फार्मूला तो वैसे वो नहीं होगा, ये वाटर का वेपर फॉर्म हो जाता है, ठीक है, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाती है, वेपर्स के रूप में फॉर्म हो जाता है। अब तो है कि यहाँ पर हम इसको ट्वाइस कर रहे हैं, ठीक है, ये हीट करने पर ये फॉर्म हो जाता है। ठीक है, कर लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, रिएक्शन विद एसिड, इसी मैं करवा दे रहा हूँ, आप लोग अलग से कर लीजिएगा। रिएक्शन विद एसिड, okay, reaction with acid, so when sodium hydrocarbonate react with the hydrogen chloride acid, okay, hydrogen chloride acid, sodium are break NaCl to give the sodium chloride, यहाँ से क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, यहाँ से जब एक हाइड्रोजन फिर ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ये ले लेगा तो ये H2O हो जाएगा बेटा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की प्रिपरेशन भी थी, देख लीजिएगा, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हमने बताया था, उसकी प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन थी। ठीक है, यही चेंज करके दूसरी रिएक्शन कर लीजिएगा। अब HCl के बाद हम H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करा देते हैं, तो लिखा भी रहता है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड एज एसिड, so it's from the sulfuric acid, okay, react with the sulfuric acid, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो सोडियम सल्फेट फॉर्म कर जाएगा, यहाँ पर SO4 - 2 है, ये भी ट्वाइस हो जाएगा, सोडियम Na2SO4, ठीक है, अब देखिए, ठीक है, SO4 यहाँ से अलग है या Na2 यहाँ से अलग है, अब बेटा ये H बचा हुआ है, ट्वाइस H है और ट्वाइस H ये है, अब ट्वाइस ये भी है, H2O रिमूव कर जाएगा, कितनी बार, दो बार, ट्वाइस H2O रिमूव हो जाएगा और ट्वाइस CO2 प्लस ट्वाइस CO2, ठीक है, ट्वाइस CO2 भी रिमूव होगा। ओके, यानी एसिड से रिएक्शन कराने के बाद ये भी सॉल्ट फिर से देता है, सोडियम सल्फेट, अब नॉर्मल सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका यूज लिखेंगे, यूज ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट, एकदम सारी सिंपल रिएक्शंस है, इंट्रोडक्शन के बाद प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, देन यूज, ठीक है, यूज इन मेडिसिन एज एंटासिड, ठीक है, ये इट इज मेडिसिन में यूज होती है, इट इज यूज एज मेडिसिन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंटासिड, ओके, एंटासिड के रूप में, एंटीसेप्टिक में रूप यूज होती है, सोडा बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, नंबर 2, it is used of फूड, ठीक है, फूड में भी देखिए इसका यूज होता है, ड्रिंक्स में यूज होता है, ड्रिंक्स में भी इसका यूज होता है, तो इट इज यूज ऑफ फूड्स एंड ड्रिंक्स,
Number 5, important salts of the washing soda. वॉशिंग सोडा, इसका इंट्रोडक्शन आप लिख लीजिएगा। वॉशिंग सोडा, the hydrate salt is known as the hydrate salt. The hydrate salt is known as washing soda. Washing soda. The chemically sodium carbonate. The chemically name are also called sodium carbonate. Sodium carbonate and general formula Na2CO3 into 10H2O, the hydrate condition of the sodium bicarbonate. ठीक है, सोडा एस क्रिस्टलाइन मीडियम में विच कंटेन, लिखिए मैं बोल रहा हूं, विच कंटेन नो वाटर of crystalline are called soda ash. Which contain no water or crystalline, okay, are called. चलिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रेट कार्बोनेट, ठीक है। जब H2O नहीं लिखेंगे तो वो सोडा ऐश हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें तो 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है, ठीक है। तो व्हेन सोडियम क्लोराइड, व्हेन आप थ्योरी लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट, okay, when sodium chloride react with ammonium hydrocarbonate in aqueous condition, ये एक्वस कंडीशन होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एक्वस कंडीशन होगा और ये भी एक्वस कंडीशन होगा। ऐसा नहीं कि सॉलिड फॉर्म में ले लो और रिएक्शन करवा दो। तो एक्वस NaCl रिएक्ट विद एक्वस अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट, देन फॉर्म सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट and give ammonium chloride NH4Cl. Further, sodium hydrocarbonate, ओके, 2 स्टेप्स में रिएक्शंस होगी, ध्यान रखिएगा, 1 स्टेप्स में कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट हीटेड, इसको लेकर हम ये जो ए आपका कंपाउंड बन जाएगा, इसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम बहुत हीट करेंगे। जब आप इसको हीट करते हो तो हीट करने के बाद इसे निकलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ओके। ट्वाइस है तो यहाँ पर ट्वाइस कर दीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगी, दोनों निकल जाएगा, ठीक है। तो ट्वाइस H2O भी निकल गया और ये भी आपका निकल गया।
आपका यहाँ बन गया, ये क्या बन गया बेटा, सोडा ऐश। ठीक है, अब सोडा ऐश में क्या करेंगे हम, इसी सोडा ऐश में हम 10H2O को क्रिस्टलाइज करेंगे तो हाइड्रेट कंडीशन में ये फॉर्म होगा सोडियम हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये देखिए पहले सोडा ऐश फॉर्म हुआ और फिर ये हाइड्रेट कंडीशन में सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ। ठीक है, टू स्टेप्स मेन है ये, तो हाइड्रेट कंडीशन के लिए क्रिस्टलाइन के लिए आपने ये रिएक्शन किया, नोट कर लीजिए। डेल्टा बोल रहे हो, फिर से बोलो अच्छे से। हाइड्रेट कंडीशन है तो बेटा यही होगा। ठीक है, हाइड्रेट में H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होंगे।